ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ। ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ। ਰਹਾਉ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੁੱਟ ਅਤੋਲ। ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨ ਆਵੈ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨ ਆਵੈ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋਵੇਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਲੜਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋਵੇਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਿਓ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰ ਦੇਣਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
सतगुरु जी दे पावन बोल पढ़ो, गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावै, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। ओदा ही गाया प्रवान है, ओदा ही सुनिया प्रवान है, जिसने सतगुरु की आग्या नूं सत करके मन ले। हुण ये स्वै पड़चोल असीं सारिਆਂ ने करनी है भी गुरु साहब जी बाणी विच जो कहिंदे ने असीं मनदे हां जां असीं इदां कहिंदे हां भी असीं कलयुगी जीव हां जी, साडे तो कित्थे मन्निया जाना। साडा बहुतिਆਂ दा बहाना ये हुंदा है, बहुते असीं इदां बहाना करदे आ भी वेखो बाणी च तां भावें ये गल लिखी है पर असीं कलयुगी जीव बाणी नूं इदां कित्थे मंन सकदे आ। नहीं, गुरु के सवारिओ जे ये गल साडे जेहन विच आएगी, जे असीं इदां कवांगे फिर मनण वाले कित्थों लियावांगे? वो तो फिर कैटागरी वखरी पैदा करनी पैगी ना, जिहड़े मनदे होण बाणी नूं। जे असीं इंज कहना है भी असीं तां भाई मन नहीं सकते, असीं सिर्फ गा सुन ही सकते हैं ना। बाणी नूं गाउणा सुनना प्रवान ही उदण होना है जिदण असीं मन लवांगे। यही कारण है कि हौली हौली गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी नूं लोकां ने समझण पढ़न दी बजाए, इहनूं जानण दी बजाए, इनू जेन विच वसाउण दी बजाए सिर्फ इदां सोच लिया। बहुता हिस्सा तो संसार का इंज भी सोचता है भी चलो मत्था टेक लो, इन्ना ही बड़ा। किन्ने लोग ने ऐसे जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी नूं सिर्फ मत्था ही टेकते हैं, कल्ला मत्था, बस ठीक है मत्था असीं इन्ना ही कर सकते हैं जी। ना भाई, इहदे तो अगे चलीए। जिहड़े मत्था टेकते हैं वो कोशिश करन भी असीं बाणी नूं पढ़ीए किसी ना किसी रूप में। साडे पढ़न वाली चीज़ है। जिहड़े पढ़ रहे हैं वो समझण वाले बन्ने चलन, जिहड़े समझ रहे हैं वो उहदे आधारित चलन वाले बन्ने नूं चलन भी बाणी च जो लिखे है वो जीव के विखाया जाए, उस तरह की इन बिन जिंदगी जीव के विखाई जाए। यही कारण है कि संसार दे अंदर धर्म दे कर्म करन वालियां दी गिनती बहुत सी गुरु नानक पिता जी तो पहलां भी, पर धर्मी बंदे टावें टावें सन। ते मेरे गुरदेव पिता जी ने बाणी दे राही उन्हां सारे धार्मिक कर्म करदे बंदियां नूं बड़े सख्त शब्दां विच कहा। इदां ताड़ना करदे आ बाणी दे अंदर शब्द वरते। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै। जे तेरे कर्म धर्म दे जेड़े लगदे ने और उन्हां च पखंड नज़र आउंदा है, याद रखी इन्हां ने तैनूं गुरु दा, रब दा, मालक दा प्यारा नहीं बनाउणा। इस गल नूं ध्यान नाल समझिए। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे, जिन्ना तैनूं धर्म जेड़ा करदा है तू और सिर्फ ते सिर्फ ये एक कर्म कांड रह जाए, ਉਹਦੇ नाल तू रब दा प्यारा नहीं बन सकदा, ਉਹਦੇ नाल तू गुरु चरनां विच प्रवान नहीं चढ़ सकदा। शब्द वेखो किड्डे प्यारे ने, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिह जम जागाती लुटै। जे ये सिर्फ पखंड है तो इंज समझ लई भी तेरे धर्म दे कीते कर्मां नूं जम नाल ही लुट रहे है। हुण जदों असीं जम की व्याख्या जां जम की गल करदे हां, साडा मनना है भी मरण तो बाद उत्ते किते जम बैठा है। जदों असीं उस जम कोल जावांगे वो साडा हिसाब किताब करेगा। मेरे बाबे की बाणी कहंदी, नहीं इत्थे ही नाल जम चलदे ने तेरे। तेरी जिंदगी च चंगे गुण आ जाएंगे, चंगी विचारधारा आ जाएगी, चंगा जीवन होएगा तेरा, और तेरा इन्हां बुराइयां भैड़ियां जमां नालों खैड़ा छुट जाएगा, तू बच जाएगा इन्हां नालों। ते जे तेरी जिंदगी दे अंदर चंगे गुण ना आ सके, बाणी वाली विचारधारा तेरी लाइफ का हिस्सा ना बन सकी। हुण किन्ना सारा जगत ही कहंदा झूठ बोलना माड़ी गल है। आपां सारे इदां ही कहने हैं, झूठ बोलना करो किरपा माड़ी जी, झूठ बोलना चंगी गल है कि माड़ी है जी? पर जो बोलते हैं उदों कहने हैं माड़ा मोटा तो बोल ही लेना चाहिए, इन्ने क दी किहड़ी गल है। हुण फिर किन्ना क माड़ा है तो किन्ना क चंगा इहदा की पता लगेगा? असीं ते अपने जिहड़ा जिन्ना क बोलदा है कहंदा इन्ना क चंगा है, वो थोड़ी कहेगा भी बस इहदे तो अगे नहीं बोलना चाहिए। जदों बाणी च लिखिया महाराज सच्चे पातशाह जी ने, गरीब निवास सच्चे पातशाह जी कहते सच दे राह ते चलना ही धर्म है। बोलीए सच धर्म, अगे शब्द वरतिया झूठ ना बोलीए। इदां जिस गुरु ग्रंथ साहब जी का तुसी प्रकाश पुरब अज मना रहे हो ना, एक एक गल गुरु साहब जी सानू इदां प्यार नाल समझाउंदे ने, बड़े बड़े तरीके नाल महाराज सच्चे पातशाह जी बाणी दे राही सानू गल दसदे ने।
पर असी बाणी की गल सुन के, बाणी का सुनेहा सुन के फिर फैसला अपनी मर्जी नाल करदे आ। हुण हर बंदा गुरुद्वारे आउंदा है पर अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का फैसला गुरु की मर्जी नाल थोड़ी करदा है। हुण साडे घर विच विआह शादी होवे, मत्था असीं गुरुद्वारे ही टेकदे आ, पर विआह दीयां सारियां रस्मां असीं मर्जी नाल निभाउणीआं ने। असीं गुरु साहब जी नूं थोड़ी शामिल करना उहदे च। गुरु साहब जी की हाज़री लवाउणी है बस। महाराज जां असीं जाके हाज़र हो आउणा घड़ी को। तुसीं कदी आम साडे इदां नहीं होण लग पिया, विआह शादी होवे ना, आनंद कारज होवे, गुरुद्वारे जाके इदां परिवार वाले कहिंदे ने भाई साहब जी अखंड पाठ कराउणा है। काहदे संबंध च? विआह दे संबंध। कदों है विआह? विआह ते अजे 10 दिन रोके है। इदां करदे आ ना असीं आम, विआह ते अजे 10 क दिन रोके है। तो भाई कहता फिर अखंड पाठ असीं सोचिया चलो बाबा जी वाला काम पहला ही निबेड़ लीए, बाबा जी वाला पहला ही 10 क दिन आपां, क्योंकि जदों विआह होया फिर तां असीं सारिआं ने कमले हो जाना, फिर ते पता ही नहीं लगना सानूं भी गुरु की गल की है। हुण मैं इंज बिने करदा हुन्ना भी किहड़ा रिश्तेदार है जिहड़ा असीं विआह च 10 दिन पहलां सद दिंदे होईए भी 10 क दिन पहलां साडा रिश्तेदार विआह च आ जाए। असीं कहांगे सब तो वध प्यार असीं गुरु ग्रंथ साहब जी नूं करदे हां। रिश्तेदार असीं विआह वाले दिन सदने ने, महाराज 10 दिन पहलां सदने ने। इहदा अर्थ की होया? क्योंकि जदों विआह होया उदों असीं गुरु साहब जी नूं शामिल नहीं करना चाहुंदे उहदे च। गुरु साहब जी की हाज़री उदों नहीं चाहिदी। गुरु साहब जी की हाज़री पहला वो भी तां है कि लोग गल्लां करनगे लै इन्ना कुछ कीता इन्हां ने, ते महाराज दा भी चलो चरण पवा लैंदे माड़े जे। लोकां लई वैसे साडा कोई इरादा नहीं हुंदा अपना, असीं दिलों कोई सहमत नहीं हुंदे इस गल नाल। सो इसलिए बाणी नूं समझना और उहनूं जिउणा, उहनूं जिंदगी दा आधार मन के चलना। मैं गुरबाणी आधार है, मेरी गुरबाणी आधार है। जदों असीं पढ़दे आ ना, धर जीअरे एक टेक तूं लाह बिडानी आस, बाकी आसां ला दे सारियां, सिर्फ एक ते आस रखिया कर, बाकी ते आस लाउण दी। पर असीं आसां बाकियां ते भी रखदे आ, पढ़दे होयां भी रखदे आ। सो इसलिए बाणी नूं समझिए, जो बाणी च लिखिया उहनूं जिउण दी कोशिश करिए। महाराज सच्चे पातशाह जी दा बाणी दा पक्ष साडी जिंदगी दा आधार बने। हर वीर भैण बाणी नूं समझे। ते असीं जदों साडे समाज दी हालत है बहुती, असीं सारे इदां ही करदे आ। वेखो जी समाज बड़ा भैड़ा हो गया ते बंदा अपने आप नूं सेफ रखदा है भी मैं ठीक, सारा समाज भैड़ा है ते उस भैड़े समाज विच मैं ठीक हाँ। हुण गुरु साहब जी नाल किते गल करे कि वेखो महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहना जिन्ना समाज भैड़ा है उन्ना ही भैड़े समाज दा रोल तेरी लाइफ विच भी है, तेरी जिंदगी भी उदां दी है, कोई बहुता फर्क नहीं है तेरी जिंदगी दे अंदर। वो सारे दे सारे कर्म तेरी जिंदगी विच भी ने। सो जदों जेड़ा ऐब दुनिया च वेखना है वो तू अपने च वेखदा ही नहीं। फितरत है बंदे दी, अपने वाले बन्ने कदे नहीं वेंदा है, कदी ध्यान नहीं मारदा। गुरु साहब जी बाणी च बार बार ये गल कहंदे, अपने गिरीवान में सिर नीवा कर वेख। महाराज सच्चे पातशाह जी ने बार बार साडा ध्यान अपने वाले बन्ने दिवाए। जपजी साहब दा मैं कल भी बिने कीती सी कि जदों तुसीं पाठ करो, जदों तुसीं बाणी पढ़ो तो तुहानूं इंज नहीं लगना चाहिए भी बाणी मैं किसे लिए पढ़ रहा। जदों इदां गुरु के सवारे कीर्तन करते हैं जां असीं बाणी सुनते हैं ना, सानूं सारिआं नूं ऐ लगना चाहिए भी बाणी साडे नाल गल करदी है। ये साडे प्यो दादे दा खजाना है, ये साडे वड वडेरियां दी दौलत है। ये खजाना गुरु साहब जी सानूं कमा के दे के गए। किन्ना क दावा करते हैं असीं इस गल ते भी गुरु ग्रंथ साहब जी साडे गुरु ने ना। कहण नूं बहुत वार असीं कहने आ ये साडे गुरु ने, पर जदों मन्नण दी गल आउंदी है फिर असीं कहने आ ना जी साडे तो मन्निया नहीं जाना। सो गुरु के सवारिओ बाणी नूं पढ़िए, सुणीए, समझिए और उहनूं जिंदगी दा आधार बनाइए। गुरबाणी दे पावन बोल मैं जिक्र कर रहा सी भी झूठ बोलना माड़ा है, ये सारे जानते ने, पर जदों बोलण दी वारी आउंदी है उदों साडे तो रिहा नहीं जांदा। बस गल उत्थे है जदों तेरी वारी आवे उदों कहीं भी मैं नहीं बोलना, उदों फैसला लई, उदों डिसीजन लई भी ना भाई मैं अपनी लाइफ च झूठ क्यों बोलां, क्योंकि जदों मेरे गुरु साहब जी कहंदे आ झूठ नहीं बोलना चाहिए। हुण हर बंदा कहेगा नहीं जी वेखो इहदे तो बिना ते गुजारा ही नहीं ना हो सकता,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਝੂਠ ਹੀ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਝੂਠ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੜਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜਦੇ ਉਧੜਨੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਵੈਦ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਨੂੰ 15-20 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗਿਣਾ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਦਾਂ ਵੈਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਵੈਦ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲੜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਾਰਜ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਰਨੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਆ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਟਕਾ ਛਾਪਤਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਗੁਟਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਗੁਟਕਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੱਭਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਦਾਂ ਸਟਾਲ ਲਾਉਣ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬ ਘੱਟ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਗੁਟਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੜੀ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਤਾਉਣਗੇ ਭਲਾ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਗੁਟਕਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਸੀਜਨ, ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੱਧ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰਲੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੱਢ ਲੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਆਕੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਗਲੇ ਸੁਣਦੇ ਥੋੜੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾੜੀ ਤਰਲੇ ਜੇ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਵੇਦ ਪੜਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤ ਕਿਣਾਵਣੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ।
ना वो तरलियां नाल वस आवे, ना वो बाणी कली पढ़ाउण नाल वस आवे, ना वो किसे लिलकड़ियां नाल, ना वो फुੱਲ चढ़ाउण नाल वस आवे, किसे चीज़ नाल वस नहीं आउंदा। फिर वो वस किवें आउंदा आ? कोई तरीका तो होना है महाराज। वो वस किवें? सारा शब्द पढ़ के वेखियो ध्यान नाल। ना तू आवें वस वेद पढ़ावणे, ना तू आवें वस बहुत घिणावणे, ना तू आवें वस तीरथ नहाइए, ना तू आवें वस धरती धाइए। ना इहदा तीरथ नहाउण नाल पूरी धरती दा चक्कर काढिया भाई, नहीं वस आउणा। वो वस किवें आएगा? तू भगतां कै वस, भगती कीतियां वस आउंदा। वो भगतां दे वस हुंदा। भगतां ताण तेरा, भगतां नूं सिर्फ तेरा आसरा होवे। हुण इन्ना बाणी जिवें इत्थे सारे बैठे मन्नीए आपां भी सिर्फ सानू तेरा ही आसरा महाराज, ना बिल्कुल नहीं मन्निया जाना। चलाकियां दे आसरे छड्ड देंगे आपां किते? कहना कहना बहुत सौखा है। तुसी सारे इदां कह दोगे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तुहाडा ही आसरा है सानू, पर ना इत्थे इन्ना कह के तुहाडा ही आसरा, फिर आसरे पता नहीं किन्ने किन्ने होर लभणे आ। ये शब्द रोजाना पढ़ते हैं असीं, हर वेले साडी सुरत विच हुंदा। असीं किन्नी वार पढ़ते हैं। महाराज सच्चे पातशाह जी नूं आण के कहने आ, तुझ बिन अवर नहीं को मेरा। सुनियो ध्यान नाल, तुझ बिन अवर नहीं को मेरा। सोदर विच ध्यान खड़ो अपना। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते मन एक न चेतस मूढ़ मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया। मूर्खा मना हरी नूं सुरत विच नहीं वसा सकिया। सानू बाणी पढ़न दा सही ढंग नहीं आया जिन्ना चिर तक असीं इन्हां गल्लां नूं अपने जेन विच नहीं लैके। हुण वेखो रब खुश करना है, असीं सारे यही कहने हैं ना रब खुश करना है। गुरु ग्रंथ साहब जी तो पुछो रब रहिंदा कित्थे है, इदां गल करो। महाराज नूं पुछो रब कित्थे रहिंदा है, ते सतगुरु जी कहणगे घट घट मैं हर जू बसै, हर हिरदे विच रब वसदा है। अच्छा जी इदां है, हर हिरदे च रब वसदा। हुण हर हिरदे च वसदे रब नूं खुश करन दा की तरीका? फिर हर बंदे नूं खुश कर। समाज दे लोकां विच इदां एक दूजे दे विचों रब वेखण दी कोशिश कर। सानू बंदियां च रब नहीं दिसदा, सप्पां च रब दिसदा। सानू सप्प नूं दुੱਧ नहीं पिआउंदे फिरदे बंदे, तुसीं वेखिओ। आ जदों गुग्गा नौमी पता नहीं किहड़े किहड़े साडे सप्प नूं कहणगे दुੱਧ पी ला, जदों दोजी नूं पाउणा होएगा फिर पानी पा के सप्प नूं प्योर पिआउणगे। किड्डा किड्डा कमला लाना है साडा सप्प, क्योंकि देवता जो बना लिया। ओनू कहण गवांढी मंग लै दुੱਧ, ओनू नहीं देना। रिश्तेदारी च किते नहीं दुੱਧ फड़ो, आण गवांढ च किसे नूं नहीं देना। सप्प देवते दी खुड गाड़ी रख के कहना भी देवता जी पी लो दुੱਧ तुहाडे लई लिआए आ। हुण बाणी च लिखिआ बंदियां च रब वसदा। तू सप्प नूं पिआ के खुश करना चाहुंदा ओनू भाई, किन्ना चंगा होवे जे ये गल जेन विच आ जाए साडे, सानू समझ लग जाए सप्प थोड़ी खुश होने आ। खीरा बना बना के इदां सप्पां नूं खवाइयां जा रहीआं, सेवियां। वैसे कहण नूं ही है सप्प देवता नूं, इदां तुसीं कहने हो सेवियां खुड ते रख के कही जांदा भी देवता जी खा लो से। जे देवता बाहर निकल आवे, जे आ जाए देवता किते बाहर, फिर जे घर आ जाए देवता इदां जिथे तुरे फिर डांग चुकी फिरदे हो भी देवते दा सिर फेह दिओ। हुण भी ओहो ही देवता है जिहदे गाड़ी सेवियां लई फिरदे सी, हुण इत्थे आ गया फिर सप्प है उत्थे दे। ये साडी समझ दा फर्क ना होया ते की होया? फिर किन्ने किन्ने कर्म कांड गिणाए जा सकते हैं। मैं बहुता इस बन्ने नहीं जाना चाहुंदा। किन्नियां समस्यावां ने इस तरह दियां साडे समाज दियां। बंदियां च बैठा रब वेख भाई, घट घट मैं हर जू बसै, संतन कहो पुकार, इबे बीठुल उबे बीठुल, बीठुल बिन संसार नहीं। केड़ा केड़ा था है जिथे रब नहीं है? यही गल मेरे बाबे ने जगन्नाथपुरी वालियां नूं समझाई, यही गल मेरे ने बाबे ने मक्के वालियां नूं समझाई। अज सानू समझ नहीं आ रही है गल, साडे जेन विच नहीं वस रही है गल। तो मैं शब्द पढ़ रहा सी आप जी दे सन्मुख। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे हम धनवंत भागठ सच नाए। धनवंत का अर्थ हुंदा अमीर हो गया, मैं भागां वाला बन गया। कदों बनिया भागां वाला? सच नाए, जदों बाणी द्वारा दस्या गया सच्चा नाम मेरे हिरदे च वस गया।
मेरे इत्थे ब्रेन च वस गया, दिमाग च बह गई गल। होर सुनियो, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं पढ़ना चंगी गल है कि माड़ी गल है? दस्सिओ जी माड़ा जिहा बोल के मैनूं। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं पढ़ना, हुण पढ़ना दे अर्थ ये समझ लिओ मेरे लिए ना कल्ला, पढ़ना चंगी गल है कि माड़ी गल है? बोलिओ जी माड़ा जिहा। तो बोलदे ही नहीं तुसीं। बोलो भाई, चंगी गल के माड़ी? चंगी गल है। हुण जे मैं ये पुछां भी पढ़दे किन्ने ने, पै जाना ना रौला। हुण हुण क्योंकि पढ़ना चंगी गल है ये असीं जाणदे हां, पर पढ़दे किन्ने ने इत्थे मुश्किल है। असीं सोचते हैं भी नहीं पढ़न दे सानू। और बाणी च बार बार गुरु साहब जी ये कहिंदे भी भाई जिन्ना चिर तक बाणी नूं पढ़ के जिंदगी दा आधार एवें जीवन च नहीं लैके आएगा। बच्चा स्कूल पढ़न जांदा है, वो 1 साल स्कूले पढ़न जांदा, असीं साल बाद उन्होंने पास होया उड़ीक करदे हैं भी पास होवे। ते इत्थे 60 साल हो गए गुरुद्वारे आउंदिआं नूं, कोई आदत नहीं छड्डी, कोई नवे गुण नहीं ग्रहण कीते, कोई नवा जिंदगी दे अंदर इदां गुरु वाला गुण नहीं आया। सारियां दियां सारियां गल्लां ओहो ही ने, कुछ नहीं बदलिया साडी लाइफ विच। इदां बंदा एक दिन गुरुद्वारे आवे, सतगुरु दा हुक्म आवे बाणी दा, क्योंकि असीं गुरु साहब जी दा जदों प्रकाश पुरब मनाउणा ना गुरु के सवारिओ, ध्यान नाल इन्हां गल्लां ते थोड़ा जिहा गौर करिए। महाराज सच्चे पातशाह जी बाणी च कहिंदे, अब हम चली ठाकुर पैहार। पहला हुक्म है सतगुरु जी का। गुरु रामदास पातशाह जी कहते, अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। अगली गल सुनियो ध्यान नाल, लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार, कोई भला कहे भावें बुरा कहे। मैं अपने गुरु दे दसे राह ते चलांगा, भावें कोई मैनू माड़ा कवे ते भावें मैनू चंगा कवे, भावें कोई बुरा कवे ते भावें कोई भला कवे। मैं पर असी की करदे आ, असी आई जाने आ, जाई जाने आ, तब्दीली कोई नहीं आ रही। मैं कई बार एग्जाम्पल दिना हुन्ना, वो बंदा बीमार हो गया, डॉक्टर कोल वेट